Thank you, sir. And yes, let's head towards the first award. Better of the match goes to Wasim. Big C, better of the match. Such a performer, jersey number 7, special number he wears. Ronaldo, Dhoni's number 7. Wasim, come back. That's baller of the match as well. Baller of the match also goes to to Wasim. Although he has picked for that baller of the match. Yes, what a performer he is, Wasim. And it's time for the female player of the match. Once again, it's Balish. Balish, please come. Speaking lots of trophies. मैम एक शेल्फ बनवाना पड़ेगा घर पर. बहुत से ट्रॉफीज आ गए आपके पास. यस सर. कितनी हो गई ये ट्रॉफी? एक क्वेश्चन है, बिकॉज हमने ये फीमेल प्लेयर ऑफ द अवार्ड रखा है, फीमेल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, फीमेल प्लेयर ऑफ द मैच. बालेश जब ये घर जाता है तो घर वाले क्या सोचते हैं? आप तो यू सीम्स टू बी, यू नो, पेरेंट्स क्या सोचते हैं, लॉस क्या सोचते हैं और घर के बच्चे क्या सोचते हैं? थोड़ा सा बताइए. First of all, I would like to extend my heartiest gratitude towards you all. It's a great opportunity कि हम लोग फीमेल एट द एज ऑफ 40 यहाँ ग्राउंड में इसमें से क्रिकेट प्ले कर रहे हैं. क्रिकेट ऐसा गेम है जो मेल डोमिनेटिंग होता है. फीमेल्स के लिए मतलब इमेजिन करना भी मुश्किल है कि हम यहाँ ग्राउंड में बॉल फेंकेंगे या बैटिंग करेंगे. मतलब मेरी जैसी लड़की के लिए फीमेल ये क्रिकेट मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था सर कि मैं क्रिकेट जैसा गेम भी कहीं स्पोर्ट्स में खेलूंगी. आज मैं वो दिन याद करती तो विक्रांत सर भागते क्लासरूम में आए और कहते बालिश मैम क्रिकेट खेलोगे. मैंने कहा सर कभी नहीं खेला. नहीं खेलना है मैडम, क्या है क्रिकेट ही तो है. मैंने कहा सर चलो ट्राई कर लेंगे. सर वो ट्राई करते हुए 6 सीजन है. आई एम कंटिन्यूसली प्लेइंग दिस मैच, दिस गेम एंड एंजॉयिंग अ लॉट एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर when my child as well as my parents also कि उनको भी ये लगता है कि चलो हमारी बेटी अब स्पोर्ट्स में भी उतनी अच्छी है जितनी दूसरे कामों में अच्छी है. थैंक यू सो मच सर फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म. थैंक यू सो मच. So I think all the teachers should be grateful to their school management who have provided you with this opportunity to perform at this age of your life. So you should be really thankful to Sanjay sir. This is the 6th season and Sanjay sir एक चट्टान की तरह खड़े हुए हैं इस टूर्नामेंट को ऊपर ले जाने के लिए. Thank you so much Sanjay sir for your part to part combination and contribution towards this tournament. Thank you very much. Yes, thank you, ma'am. Thank you, sir. And in fact, you have also taken lots of trophies as well. You're back home. So it's time for the star performer of the match. It goes to Dinesh. Dinesh, please come. That's the star performer of the match. Yes, well played by Dinesh. So this award of star performer of the match is introduced in this season only because we felt that the losing team, it is not the losing, it is the opponent team because they also have done their job to the best of their abilities. But this award was introduced this season because to give some credit to the opponent team also, because sometimes it happens that we perform very well and we go empty-handed. So Dinesh, कौन सा है ये? सेकंड है सर. यस. बेस्ट बैट्समैन का कब मिलेगा? अगले साल. अगले साल. चलो, इट्स नेवर टू लेट, यू नो, और मेहनत करो, अगले साल और अच्छा करना है. राहुल, कैप्टन. Yes, firstly, we come to as winning captain. Yes, ma'am, how are you feeling? You have advanced to semis. Oh, I'm already planning for tomorrow. What's the plan? That's not to be disclosed. Any hint you can give? No hints, but yes, I would really want to continue with the winning streak now. Yes, thank you, ma'am. Thank you, and good luck for the next match. We head to the yes, thank you, ma'am. We head to the losing captain, sir. What went wrong today? First of all, I would like to congratulate ma'am and her team. They played very well, undoubtedly. Actually, we won the toss and we decided to field first. We wanted to
contain the team under 100, but we were not able to. हमारी एक्सपेक्टेशन से 15-20 रन इस टीम ने ज़्यादा बनाए, बट इन स्पाइट ऑफ दैट हमारी स्ट्रेटेजी थी कि हम लोग बेहतर खेलेंगे, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट. दिनेश इसका उदाहरण है, ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, लेकिन पूरा सपोर्ट उसको नहीं मिल सका. अनफॉर्चुनेटली विक्रांत इंजर्ड हो गया फील्डिंग के टाइम पे, पूरा सपोर्ट उनको नहीं दे पाया और दूसरे बैट्समैन भी नहीं चल पाए. दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, दिस इज क्रिकेट. समटाइम वी विन, समटाइम वी आर नॉट एबल टू विन. एंड मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज के दिन ये टीम जो विजेएस की है बहुत बेहतरीन खेली. हर दोनों में, फील्डिंग में, बॉलिंग में, बैटिंग में आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला और पूरे मैच को डोमिनेट किए रखा. हम लोगों ने कोशिश करी, नहीं जीत सके, लेकिन दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गेम. नेक्स्ट टाइम. एक और बात में जो अभी संजीव जी से बात कर रहा था कि टीसीसी में एक बात देखने को आई है कि कोई भी मैच हो उसमें फीमेल प्लेयर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है. इसमें कोई शक नहीं है कि वसीम आज के मैच में बॉलिंग भी बैटिंग भी 2-2 ट्रॉफीज ऑलरेडी हाथ में है, उसमें बहुत बढ़िया खेली. लेकिन मैच के जो टर्निंग पॉइंट आए वो फीमेल प्लेयर्स की वजह से आए. चाहे वो 6th ओवर में आकांक्षा ने रन नहीं बनाने दिए, चाहे दिनेश का बहुत बेहतरीन आपने लिया, तो ये दोनों जो वो थे यहीं से एकदम से टर्निंग पॉइंट. और ना केवल आज के मैच में, आप लोग हर मैच में देखेंगे फीमेल प्लेयर्स के ओवर्स में टर्निंग पॉइंट आते हैं. तो और जैसा बालेश मैम ने भी, जैसा शिवानी मैम ने भी अभी शेयर किया, वो इंस्पायरिंग है. और सभी फीमेल प्लेयर्स चाहे रन बना सके हो या नहीं बना सके, इट हार्डली मैटर, लेकिन उनका ग्राउंड पे होना, इस जज्बे के साथ ग्राउंड पे होना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत इंस्पायरिंग चीज है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, स्कूल की, घर की, उसके अलावा भी बच्चों की, हस्बैंड की, और बहुत सारे रिस्पॉन्स. उसके बावजूद वो लोग यहाँ पे आते हैं, पूरा दिन, पूरा टाइम यहाँ पे रहते हैं. जिस दिन मैच में नहीं होता, हमारे समेत और टीम्स के भी 2-2, 3-3 फीमेल टीचर्स रोज आते हैं दूसरों का मैच देखने के लिए, उससे सीखने के लिए. तो ये अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग चीज है. और संजीव जी, मैं ये चीज कहूंगा, टीसीसी का ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. दिस इज एन अचीवमेंट कि टीचर्स को क्लासरूम से बाहर निकालने के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द फीमेल प्लेयर्स एज वेल एज मेल प्लेयर्स. एंड आई सपोज टीसीसी इसी तरह से चलता रहेगा और बढ़ता रहेगा. थैंक यू. One thing I would like to address among all the staff members as well as the management, that tomorrow we are going to play the semi-finals and the final. और mostly ये देखा गया है कि जो लोग टीम्स आगे नहीं पहुंच पाती हैं वो फाइनल और सेमीफाइनल के लिए आती नहीं है. तो आप लोग सब चाहे हम आगे पहुंचे या नहीं पहुंचे, आई वुड रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल्स टू प्लीज अलाउ योर टीम मेंबर्स टू कम हियर एंड विटनेस द सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स ऑल्सो. हम लोगों का या जो भी आगे जाएगा उसका प्रोत्साहन उसको मिलता है और उसका हौसला बढ़ता है. तो हौसला अफजाई करने के लिए कल आप लोग जरूर आए सब लोग, और आगे वाले सीजन्स में भी इसी तरीके से ट्रेंड रखें दैट हम यहाँ पे सब लोग अपनी ज्यादा से ज्यादा ताकत के साथ आकर के सबको चीयर अप करें. थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल परफॉर्मेंस यू ऑल हैव मेड. थैंक यू वेरी मच. Yes, thank you, sir. And last thing मुझे और इस साल फिर सर जो है ना एस बग या फिर सिडनी TCC. Yes, ma'am. Okay, guys. So this was my very first cricket match I've ever seen, and I'm so impressed by both of the teams. You give your best, and for me it was a very, very good starting point. I would love to see the semi-finals and the final tomorrow, but then I'm in the airplane back home, so unfortunately I cannot. But I will think of all of you, and you just excuse me, but I'm very happy that my team won today. You did so well, and you also. Yeah. Thank you that I was allowed to be part of this. It was a great pleasure to me. Thank you so much. Thank you so much. I would love if your family and your relatives in the who are in Germany and they see us live from there. You know, so we would be able to reach your homes in Germany also. Yes. 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 Thank you so much. Thank you everyone for this. Thank you.
So thank you. So this is it from the presentation ceremony. Once again, we congratulate VGS Strikers for winning this match and advances to final. Back to the action. Rahul, over to you. Yes, thank you. And talking about action, some wonderful action out there in the middle. Meanwhile, another good hit to the fence. Previous delivery, of course. And he gets a single straight away. This is the third over going on. LPS Euphorians at the moment. They're 16 for 1. And Satyam is out there. Saurav is... He's just walked out. He's batting on 8 at the moment. And LPS are onto something here. They'd be looking for a victory. At the other end, the bowling team looks for the swing. Once again, works it away towards a deep square. Gets another single. So daring Divinians almost out of this tournament. But they'll be playing for their pride. They're such a good team. This time around, haven't had the best of starts. It's another good shot. But there is a fielder there. It'll only be a single. And the day has been such a... We haven't seen too many big teams score a huge amount of runs. It's been more calm. We haven't seen the flow of boundaries. At the moment, Satyam and Saurabh, they are at the helm. And meanwhile, this partnership has been broken. That is a big wicket. Inside edge onto the stumps. And it's a big fish as well. The captain, the left armer picking up the all-important wicket. And that could be a big moment in this game. इधर आओ इधर आओ बैठो बैठो बस क्या चेक करना है दो टप्पे पहले लग गया बैट पहले रिव्यू करो दोबारा एक तो दब्बा खा गया था ना नहीं नहीं आप पीछे करो दोबारा बॉलिंग यहाँ से डालो बॉलिंग से दोबारा करते हैं आप भी करते रहना पड़ेगा यहाँ से एक पैर पे टिका बैट लग गया पहले बैट लग गया यहाँ से दिखा यहाँ से देख हाँ बैट में लग गई ना वहाँ टिक गई भाई अंदर है So a massive wicket. The skipper of LPS, he has to depart. And what an over that turned out to be in the end. They were going along so nicely. And now the final delivery of that over, Satyam departed. He was probably looking to hit that a bit too hard.
Inside edge, chops it on back to his stumps. Shivani is a new batter who walks out to the middle. She would be at the non-striker's end though because the batsman was dismissed of the final delivery of the previous over. 18 for 2 at the moment. LPS after the third. So Ashwini into the attack. Jersey number 7. That's once again worked away towards the onside. A fielder gets around it. Should only be a single. It will only be a single. So Shivani on strike facing her first delivery. Ashwini looks to toss it up, trying to use his guile, giving it the much needed air and bowling it slow through the air, asking the batter to look to play the big shots to get off the mark. That's in the air. That could be a wicket. That's exactly what he was trying to do. Tries to get to it, couldn't reach up to the delivery. And they've come back for 2. It's excellent running between the wickets. Off the mark with a brace is Shivani. That was aerial, but just safe, just about safe. Bye. Looks to play the cross-batted heave towards the offside. Swing and a miss once again. That's another dot. So LPS, what they really want is a partnership out there in the middle. That previous partnership between Saksham and Saurabh. Both of them were going along nicely, and just then Neha came into the attack and picked up a wicket with her left arm seam. Another couple of runs, 2 more added to the total. And it's only about what kind of a score you put. What are the challenges that the opposition team might have in chasing that? That is a sensational catch, a stunning effort by the bowler in his follow-through. He knew it was lobbed up in the air, and that ball was travelling away from him. Reaches out to it, and that was a far-fetched for him to catch. That was almost a half chance, and he takes it, he pouches it. Such a good effort. Might have hurt himself in the process, but doesn't matter. The elation of picking up a wicket is far better than So 4 overs gone. LPS Euphorians 23 for 3 at the moment. Once again, a wicket coming off the final delivery of an over. Meanwhile, a new batter is out there. Dushyant has come in after that dismissal. Ashwini picking up a wicket in his very first. Has given away just 5 runs. Has picked up a wicket as well. थर्ड एम्पायर में ऐसे आएंगे। अरे दूसरा माइक ले ही लिया क्या भाई छोटा वाला लेके आओ उसके पास क्या होगा नहीं इसका लगेगा ना
ये वो मेरी लोई का वो ले गया कौन कैमरा ऑपरेटर मैं कमर तोड़ दूँ भाई वो वहाँ पे पता है पता है मुझे ऐसे हो रहा है मैं बैठा हूँ भाई ऊपर से ओस पड़ रही है वो भाई बन गया ये कैसे बैठा होगा ये भी मेरे से रेंट लूंगा मैं उसका भाई ले लो और भाई थोड़ा हल्का कर दे यार माहौल कर देना हल्का अरे आप हल्का ही कुछ तो बोलो हल्का ही मजा नहीं आ रहा चला ले अभी बोलते ने प्रेजेंटेशन करवा भाई दी इसको बंद कर दे यार तो यार प्रेजेंटेशन हो गया कभी कर रहे ये ना अरे वैसे कुछ भी मिक्स में मारना चटपटा मारना करते हैं नहीं ऐसी बात नॉर्मल राइट मतलब नॉर्मल बात अच्छा एक बात बताओ आएगा इसमें चौथी टीम कौन सी थी बीएसपी के थी ना दो यहाँ से होगी दो वहाँ से होगी समझ नहीं पा रहा and this has been a decent over and the call is for two and two it is another couple of runs and after the fifth over they're 31 for 3 LPS Euphorians and finally they've started to get a move on क्या ले लिया भाई क्या बोल रहे हैं क्या हुआ तो क्या कर रहे हैं वो हर बार अबे भाई कहीं फोन करेगा अरे भाई क्या लिया है हमें कुछ नहीं पता यार वो क्या कर रहे हैं राहुल देख लो खाली जा रहा है टॉफी अच्छा हाँ सही कह रहे हो ये तो खत्म So 5 overs gone, LPS Euphorians, they're 31 for 3. Remember, both these teams playing for pride. This is their last game in this tournament. And they've been two top teams, two fine teams. And this time around, didn't get going. Lost both their games. They would like to close this affair with a victory in this campaign. That's it, straight down the ground. That's a very good shot. The fielder, can he cut it off? He does. They've run three. They've run across for 3 runs. That is special running. That is so quick. The calling as well shows you the belief that both these batsmen have in each other. He had made the call and the opposite number, all he had to do was respond to that call. So this is the 6th over in progression. We are already approaching the halfway mark. Turns it away towards the onside. Another couple of runs. 2 more. Score moves to 36 now, 36 for 3. You know, there's a
They had a slight hiccup earlier, LPS, and now you can see a partnership being built. Attempts a full toss, and the non-striker wanted a single. He wanted to get to the striker's end, but I believe the man on strike, he wasn't aware of the situation. He wasn't aware of the fact that there was a single on offer. So Saurav and Dushyant out there. Neha into her final over, and she's bowled really well. She got the big fish back in the pavilion, the captain, and she has bowled well throughout this tournament. You know, I've maintained the fact that it's always a rare sight, especially at this level. You don't see too many left arm quick bowlers or left-handed batsmen as well. And Neha, being a female player, I think she's been a standout performer for her team. Swing and a miss once again. This is good bowling. This is smart bowling. She's varying her pace nicely, keeping the batsman guessing. And at the moment, he has no clue. He's all at sea so far, is Dushyant. Generally such a fluent batsman. Advances down the ground again, once again. That is another dot, not quite where he intended to hit it. Finishes the over with a dot. That is a very good one. What a fine spell that is by Neha. Has bowled out her 2 overs and conceded just 14 runs and picked up a big wicket. And that's the end of the 6th over at the halfway mark. LPS Euphorians at 37 for 3. So start of a fresh over, start of the 7th. The medium pacer is back into the attack. Starts off with a quick delivery, bowls it straight. And Tarun, you can expect that from him. He'll bowl quick, he'll generate a lot of pace. And more often than not, he's straight. He's on the stumps, wicket to wicket bowling. That's his strength. And he will work to his strength. Jersey number 18 steaming in again. Swings it away towards the mid-wicket region. Another single taken. But LPS, they need to get a move on. At some stage, they need to take those extra risks. Anything less than 80, and they won't be happy with that. 39 for 3 at the moment, LPS. Saurav has been the batting mainstay in this particular innings. He scored half of the runs of the team total. That's running away. That's trickling away towards the fence. Will the fielders be able to stop that one? Just about stops it. That was very close to the boundary ropes. And have they come back for the third? I think they've come back for the third. Rather, they've come back for 4 runs. That is special. That is spectacular. They've run 4. Would you believe it? That is special stuff.
So wide and 4 runs. That's smashed, but straight to the fielder. Should only be a single, another run added to the total. So finally, LPS getting a move on. They're picking up the scoring rate. 45 is what the scoreboard suggests. And we are into the 7th over. 5 more overs to go after this. Got a lot of time in their hands to pick up the scoring rate. Once again, looks to heave it away towards the onside. That one, keeping just a tad low. Hit him on the legs. And Tarun at the moment just firing it in. You can sense that he's working up a lot of steam. He's trying to build the pressure with those nippy deliveries. And meanwhile, sort of back on strike. Reaches up to the pitch of the delivery, hits it straight back to the bowler. Feels it well in his own follow through, does the fielder, Tarun. Final delivery of the 7th over coming up. Saurav has got one hit to the fence, and his team would be hoping there are many more to come. Swings it away. Not in total control, but the fielder takes the tumble, puts in the dive, and that could be a run out. It is a run out. That is unfortunate. Miscommunication between both the batters out there, and that is so unfortunate for LPS. They've lost another one. They've lost their 4th. Aditi is the new batter who walks out. Meanwhile, another over and another wicket of the final delivery, 7th gone. And LPS, they're 47 for 4. So we'll get started with the 8th over. मुझे नहीं सुना ना वहाँ सुना नीचे बता रहा हूँ The projected score at this rate would be 81 in 12 overs. But I'm sure they'd love to get to at least 90. Meanwhile, daring Divinians, they'd be hoping they can restrict them to somewhere around 75 or so, and they'd be very happy with that effort. Meanwhile, Rajesh into the attack. Rajesh bowling his second, gave away 5 runs in his first. He's bowling the 8th. First delivery, here we go. Aditi, the batter on strike. That's a very good shot. Good connection made by Aditi. Should be a single. Vigilance out there by the man standing at mid-wicket. Quickly gets rid of the ball, throws it back to the bowler. Was backing the stumps up. The score moves to 48 for 4 now. 2 runs away from the team half century. That's aerial. The keeper quickly getting to it, but that was always going to be safe. Was looking to heave it away towards the onside. Doesn't get it on the meat of the bat. And that just ballooned up in the air. The problem with the LPS is that they played out too many dot deliveries in this particular innings, and that might come back to haunt them.
And that's a wicket. That's a wicket. That's scoreboard pressure. He had to do something special. Had to hit it to the fence. He was going for it. He was looking for it. And that's what happens when you look to do something different, out of the ordinary. And LPS are in trouble now. They've lost half their side. They're 48 for 5 as Dushyant walks back. छोटे 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 कहाँ है? वो छोटा दी दूसरा छोटा Nitin is the new batsman who walks out. He walks out at number 7. There is still a glimmer of hope for LPS because he's one man who can turn things around pretty quickly. A hard-hitting batsman can change the course of any game within a span of a couple of deliveries. Deft touch there. Turns it away towards the third man region, off the mark straight away. Thinks about a second there, but not to be. Aditi was pretty sure that there was no 2 in it. Score moves to 49. Nitin up and running straight away. Off the mark, first delivery. Aditi back on strike. Rajesh has started this over pretty well. Looks to play the cross-batted heave towards the offside, gets the under edge, and straight back to the bowler. That's another dot delivery. They were played out far too many dot balls in this particular innings, as I stated. LPS as pretty unlike them because they keep the scoreboard ticking. The runs are constantly churning when LPS are batting. That was again aerial, but just shy of the fielder, was running across, coming in from his follow through. 50 up for LPS, courtesy that single. 50 up in the 8th over. So they're 50 for 5 with 4 more overs to go. अश्विनी के साथ गया बड़ा बाला इसका बैठता है एक ही सॉल्यूशन है तो इसके आसपास तुम संभालो लो करो करो तुम दिखो ही मत वो जाएगा ही नहीं होता कौन है 12 भूल जाता है वो कह रहा मेरे को तो मजा So we'll get started with the 9th over. And Vishal coming around the wicket. Aditi works it away towards the offside. Gets a single. Nitin back on strike, courtesy that single. Now, really, LPS, what they need to do is, at the moment, first and foremost, they need to have wickets in hand. They can't afford to lose any more wickets. And then probably in the final 2 overs, look to get some quick runs. And that too, probably without taking too many risks. And, a lot of batsmen, a lot of established batsmen have found it very difficult to hit the big sixes in this particular ground this season. The timing hasn't been quite there. And I also think it's because of the conditions. The pitch is sticky because of overnight dew, and the sun hasn't really come out since the last couple of days. What happens is when the sun comes out and it shines bright,
it bakes up the pitch, and it's much firmer, it's harder, and then the ball really comes onto the bat nicely. The bounce is truer as well. That's a good shot. That's a good swing across the square leg region. They could come back for the third as well, and they do. They do comfortably. So 3 runs there. Excellent running between the wickets once again. That's what you got to do. You got to keep the fielding team on their toes. You've got to pounce on every single opportunity that comes your way. Meanwhile, 3 more runs added to the total. Remember, every single run counts. Both of these teams playing for their pride, playing for their first victory in this tournament. They're bowing out of this tournament today. But they have nothing to be ashamed of, both these teams. They are such class acts. We've seen it throughout the years that both LPS and Daring Divinians have been a class apart. They've got such talented players, and they are such a well-rounded unit. One left, one left. Final delivery of the over coming up. 1 more to go. Nitin, the man on strike. And yes, they haven't had the best starts to the 2024 season. But that doesn't take anything away from them. Because as I said, they are a top team, both of them. And they've maintained that consistency. That is why we keep mentioning that. Meanwhile, Nitin gets a single, swings it away towards the onside, and he will keep strike. That's the end of the 9th. 3 more overs to go in this innings, and LPS Euphorians, they're 59 for 5 after the end of that one. बोलने के बाद 59 So Daring Divinians are playing their second game of the day. And they would be nicely warmed up. They've already been out there on the field for 1 game. They've come back in the second game for them as a team. And they won't be sore, they won't be tight. They have loosened up. They had enough game time in the first one. Unfortunately, the results didn't go their way. Plays that very, very late. Opens the face of the bat, works it away towards the offside, gets a single, does Nitin, and gets Aditi back on strike with that single. The score moves to 60. This is the 10th over in progression. And as I said, both these teams have a very good bowling lineup. So it's not a surprise that it's a low-scoring affair. It looks like, in all probability, that it will be, but it should be an interesting run chase. As I stated, sometimes it's these low-scoring affairs that are much more entertaining than those games where both the teams score in excess of 100 runs. It's a gripping contest at all times. You see an even contest between bat and ball. Another one drills it down towards long on. They should come back for the second. The running between the wickets has been good. And they get another brace. 2 more runs added to the total. She's a great sprinter, is Aditi. Just sprints across. Comes back for the second. Making every single run count for her team. Right. Angle. Camera. Meanwhile, Ashwini
who's already picked up a wicket, is continuing. And Nitin has been really sensible so far. He knows that he needs to take this innings deep. He's a proper finisher. And that's why he was sent in at number 7 today. He's got the capability of pulling out the big hits when required. And he would be waiting for that opportunity, those death overs. He will look to free his arms. He will look to swing it hard. Aditi swings it hard, meanwhile, connects it well. Sweet timing. But there is protection out there. Only a single. For a brief moment, she thought about a second. But not to be decided against it, these two. So that brings Nitin to face the final delivery of the over. Nitin batting on 10. Aditi moves to 7. That's an interesting stroke, but that could be a wicket. Just falls safe. That went high in the air. And that could be a wicket again. Have they hit the stumps? I reckon they haven't. That's more overthrows, more runs. These are easy giveaways. Or have they hit the stumps? We'll have to wait for the verdict. पता तो लगे सर मेरे को 69. So that is the end of the over. They've run 4 in the end. 69 for 5 after the 10th. 2 more overs to go. LPS picking up the pace slowly and steadily. 12 legal deliveries remain. So it's been a gloomy day today here at this picturesque ground, and we haven't seen too many boundaries. Hardly have we seen any sixes. I think we have seen 1 6. And but as I said, we haven't seen too many boundaries. But what we have seen is, on a couple of occasions, the batters have run 4. So 2 overs remain. How many more runs can LPS get here? Definitely 85 plus is something they'd be aiming for. Swing and a miss. And a buys. They sneak in a buy. Another run added to the total. Nitin wanted strike. He gets it. Now is the time to go downtown. Now is the time to swing it hard. And he will have a look around the field just to make sure where exactly all the fielders are. Get it in his head and play it into the pockets. There he goes. He swings it hard. And when he hits them, it stays a hit. That's a massive one. That is a monstrous hit. I told you he could do it. He's shown why exactly he's such a dangerous player at the back end. The first maximum in this innings. And a big one at that. That is a great comeback. That is an excellent comeback by the bowler.
Tarun generates a good amount of pace, and that 6, that would have really bruised up his ego. He bowls it full, he fires it in, he bowls it straight. And the batsman once again looking to get underneath that one, once again looking to swing it away towards the onside. Misses it by a mile. Slightly shorter in length. Goes for the pull. It's really quick. Hit on the legs. They sneak another bye, one more run. So Aditi on strike. भाई 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 बैन 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 बोलो बैन भाई बोलते वक्त नहीं यार बुखार चेक हो रहा तुमने क्या पता यार अच्छा लगेगा मैं तुम बना रहे हो कॉपी में तू कैसे पूरा पेन चला दूं बैठा है बे एमएबीएम तू क्या सोच रहा उंगली नहीं घुसेगी बन जाए भाई गद्दा मारना काम मत खराब करो यार अबे तो गुलगुली और इसका देखे तो गुलगुली लेकर ले राहुल भाई मैं बता रहा हूँ अभी ये स्कोर बोलेगा खिच्ची ये गाय तंग काट कर रहा रहा है ये बीच में ये स्कोर बोलेगा अगर अब क्या बोला मैं माइक बंद कर दिया भाई ये बोल लाला बोलेगा एक और रह गया कर लेना ना यार अब ये बोलेगा ये बोले मैं नहीं बोल रहा भाई ये बोलेगा अब स्कोर लाला बोलेगा कितना हो गया 79 हो गया ना मैं बोल ही नहीं रहा भाई तेरी एक्स की कसम अरे बोलो यार वो छोटी स्क्रीन देख मैं इंतजार कर रहा है बैट्समैन वो स्कोर पूछे वही बोल भाई अरे बोल वो दे बड़ा यार, मछली है साले काम के बीच में पानी पी रहा हाँ तुम बोलोगे भाई तुम बोलोगे तुमने बंदा बिठा दिया वहाँ उनका काम है वो करना ना हूं विराट की ना मैं नहीं बोल रहा तुम मजे ले रहे हो भाई काम के बीच में So now at the end of 11 over score has reached 79 with loss of 5 wickets. तूने तो पहन भी रखा मैंने पहन भी नहीं रखा देख तू टोपा ही पहन टोपा पहन तू सेफ्टी Nitin goes after it once again. Hits it hard. Doesn't get the distance this time around. But he'll get a couple of runs though. Another brace. Starts the over well. Was looking to swing it away towards the onside. There was a fielder there at long on. And Nitin moves to 22. How many more runs can they get LPS from here on? If they get 90 plus, they'd be really happy with that effort. He was looking to try something fancy here. Didn't need to do that. When he was targeting that onside, he got the results. The moment he thinks out of the box, he fails to connect. And Rajesh bowling the final over of this innings. So 4 deliveries remained. Looks to swing at it once again. I think he got some bat on it and onto the legs. Another single taken. The score moves to 82. Aditi back on strike. She has batted well. She has got her eyes set. She's batting on 9. She's faced 12 deliveries. So 3 legal deliveries remain. I think this is already a decent total that LPS have got on the board. So daring Divinians would be thinking, what is the target that they are about to chase in this match? It's a must-win situation for both of them. Must win as in, they've already bowed out the tournament. That's a very sweet connection that she makes once again. Heaves it away towards the onside. Another single. As I stated earlier, these two teams have already bowed out of the tournament. This is the final game that they're playing. They're playing for their pride here. So a couple of deliveries remained. Down the leg side. He knew that was travelling down the leg side. Lets it go straight to the wicket keeper. 2 balls left The score moves to 84. One big hit and they'll get to 90. And they'd be really happy if they get there. Penultimate delivery of the over.
He hits it hard, he hits it flat, straight to the mat. That's a good effort, very good effort. He knew that the ball was... He knew... बैटरी गई क्या? बंद हो गया, बंद हो गया. चल रहा है ये भी दे दो बैटरी डाल के. अरे माने लग जाऊंगा. असली तो खुद ही कर लो. क्यों कर रहा है? किसने खाए?
शोर नहीं करना, हल्ला नहीं करने का। हो गया चार्ज? कितना हुआ? कितना था? कितनी देर लगाई? 20 वाट का है। मेरा भी सेम सेम है भाई, अब कनेक्शन तोड़ रहा है, अब मत तोड़ तू। इनमें से प्यारा चल रहा है तो अब कनेक्शन तोड़ रहे थे। तो मुकाबला आज के दिन का ये आखिरी और रन चेज फिलहाल यहाँ पर शुरू होता हुआ। वेयरिंग डिविनियंस बनाम LPS और लास्ट मैच ऑफ द डे। एक अच्छा मुकाबला आप यहां से देखेंगे क्योंकि आखिरी मुकाबला आज के दिन का। और क्रॉस द लाइन एक बार फिर से खेलने की कोशिश, कनेक्शन उतना अच्छा हुआ नहीं लेकिन रन्स फिलहाल यहां पर आते हुए। और भाग तो गए एक। तो फिलहाल 2 रन बोर्ड पर आखिरी गेंद, पहले ओवर से फुल लेंथ डिलीवरी अलोंग द ग्राउंड खेला। इस शॉट को स्ट्राइक अपने पास रखेंगे तरुण। और लक्ष्य अगर आप बात करेंगे तो गेंद और रनों के बीच का फासला ज्यादा है नहीं। कोशिश करेंगे यहां पर कि निर्धारित 12 ओवर बल्लेबाजी करें। और रिक्वायर्ड रन रेट पर अगर आप नजर डालेंगे तो 7.82 का परेशानी होनी नहीं चाहिए क्योंकि इस ओवर के बाद लगभग 11 ओवर आपके पास हैं और 10 विकेट पूरी तरह से सुरक्षित। आने वाले बल्लेबाजों की फेरिस्त पर अगर आप नजर डालेंगे तो काफी बल्लेबाजी मौजूद यहां से। और विकेट की तलाश जरूर करेगी यहां से LPS। बल्लेबाजों ने अपना काम किया है, एक फाइटिंग स्कोर दिया है, लेकिन उसके बावजूद अभी इस मुकाबले में आप अपनी पहचान, अपनी दबदबे को किस तरह से बरकरार रख पाते, बना पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पटका हुआ गेंद थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे, ऑफ स्टंप के बाहर, आउटसाइड थी ऑफ स्टंप, वो बाहर गेंद 5वें 6ठे स्टंप की तरफ। दुष्यंत तीसरा मुकाबला, 2 विकेट उनके खाते में अभी तक। बेस्ट एक बार फिर से इस बार तैयार थे, जानते थे कि ऑफ स्टंप के बाहर वो गेंद मिलेगी और उसको उतने खूबसूरत तरह से प्लेस किया है। मौका यहां पर जरूर बनता हुआ। पावर प्ले का ये समय है, कितने रन्स आप शुरुआत के पावर प्ले में जोड़ पाते हैं और आने वाले बल्लेबाजों के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत रहेगी क्योंकि जिस तरह से पिछला मुकाबला हमने देखा था, रॉयल इंडियन भारतीयंस अच्छे टच में नजर आते, एक अच्छी डोमिनेटिंग कंडीशन में थे, लेकिन 3 ओवर जिनको वो टारगेट करने के लिए गए और उन 3 ओवर में उस मुकाबले का रिजल्ट पूरी तरह से बदला। लेकिन अब दिन के इस तीसरे मुकाबले में आप सिंगल स्टेबल्स के साथ फिलहाल यहां पर रन्स आते हुए और बैटिंग के लिए इस समय 2 सलामी बल्लेबाज दुष्यंत सिंह। स्पेल का ये पहला ओवर, दूसरा गेंदबाज 8 रनों की साझेदारी, 8 गेंदों में 6 रनों की ये साझेदारी, 89 रन का टारगेट, 12 ओवर का ये मुकाबला, अंतिम पारी। एक बार फिर आगे की तरफ गेंद, एक बार फिर थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे, ऑफ स्टंप के बाहर लगातार वो गेंदबाजी होती हुई। एक गैप है सुपर कवर क्षेत्र, अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा गैप है, वो उस गैप को आप फुलफिल किस तरह से कर सकते हैं, बैक करना होगा खुद को। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को हिट करना तो बैकफुट आपका बेहतर होना चाहिए कुछ इस कंडीशन में पड़कर। गेंद टप्पा पड़ने के बाद घुमा और रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतर, और ये एक की फैक्टर रहा है इस पूरे ही टूर्नामेंट में।
अवेयर होते हुए पूरी तरह से यहाँ पर सभी खिलाड़ी, जब बाउंड्रीज नहीं मिलती है तो सिंगल्स को डबल्स में तब्दील करते हुए स्कोरबोर्ड को लगातार बिजी रखने की यहाँ पर कोशिश करते हुए 80 रन अभी और बनाने हैं। अगली गेंद एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर, एक बार फिर यहां से एक अतिरिक्त रन और मिलता हुआ। ऑफ साइड ऑफ स्टंप जब गेंदबाजी होती है तो आपका बैकफुट पर काफी निर्भर हो जाता है आपका शॉट। ऑफ स्टंप की लाइन को कवर करें और उसके बाद बाहर निकलती हुई गेंद को कुछ अलग तरह से खेलने की कोशिश की। इस बार थर्ड मैन की दिशा में केवल गाइड करना चाहते तो उस गेंद को, और करीब से निकलता हुआ वो गेंद। फिलहाल 10 रनों की पार्टनरशिप, रन चेज गेंदबाजी पर जिम्मेदारी रहेगी यहाँ पर, और यहाँ बढ़िया गेंद, पैर उतने चले नहीं और केवल बल्ला डाला गेंद की लाइन में। शायद इंतजार कर रहे थे ये बॉल भी आउटसाइड द ऑफ स्टंप मिलेगी, लेकिन इस बार आखिरी गेंद इस ओवर से 7 रन बेशक दिए हैं, लेकिन पहली बाउंड्री की तलाश को जारी रखने की कोशिश यहाँ पर तरुण की। 10 रन बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दुष्यंत स्पेल का पहला और आखिरी गेंद, मिडल और लेग पर वो गेंद हल्के हाथों से खेला उस गेंद को, और पहले रन के साथ दूसरा रन यहाँ पर पूरा करते हुए बढ़िया रनिंग। और इस 2 रन के साथ 2 ओवर फिलहाल यहाँ पर पूरे होते हुए 2 ओवर 12 माफ कीजिएगा, यहाँ पर बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ती हुई यहाँ से बल्लेबाजी कर रही टीम के लिए कितना मुश्किल पेश कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक 2 ओवर बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दबाव के अगर आप अतिरिक्त रन रोक लेते तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि किस तरह से आप अपनी लाइन और लेंथ को बरकरार रख पाते हैं, मेंटेन कर पाते। 77 रन अगले 10 ओवर यानी 60 गेंदें आपके पास, 10 विकेट पूरी तरह से सुरक्षित। इक्वेशन कह लीजिए या गेंद और रन के बीच का वो जो फासला है वो ज़्यादा है नहीं। पूरे ओवर अगर खेलने दिए तो शायद इस मुकाबले को बहुत कंफर्टेबल इस मुकाबले को अपने नाम कर पाएगी टीम। लेकिन सवाल है कि विकेट आप कितना जल्दी यहाँ पर निकालते हैं। जैसे जैसे विकेट गिरेंगे वैसे वैसे दबाव जो है आप बल्लेबाजी कर रही टीम पर बना पाएंगे, और कप्तान की क्या रणनीति रहती है यहाँ पे। रोटेट करना होगा अपने गेंदबाजों को, और दुष्यंत सिंह और नितिन से फिलहाल शुरुआत के 2 ओवर, और ये तीसरा जो ओवर है वो फीमेल प्लेयर एज पर रूल क्या यहाँ इस ओवर को टारगेट कर पाएंगे। 6 रन प्रति ओवर की दर से रन आते हुए रिक्वायर रन रेट 7.0। पटका हुआ ये गेंद लेग स्टंप पर डॉट बॉल के साथ शुरू होता हुआ। अदिति मैम का ये पहला ओवर टारगेट करने की पूरी कोशिश यहां पर होनी चाहिए इन दोनों ही खिलाड़ियों के द्वारा। एक मौका मिलेगा आपको, और अगर यहां से कुछ रन्स, इस ओवर से कुछ रन्स अगर बना लेते तो निश्चित तौर पर आसानी हो जाएगी। लेकिन एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर से खींचने की कोशिश की उस गेंद को, गति है नहीं तो थोड़ा सा शॉट सिलेक्शन और टेक्निक की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है। और अभी तक इत्मीनान के साथ खेलते हुए किसी भी तरह की जल्दबाजी देखने को मिली नहीं। एक बार फिर विकेट्स पर वो गेंद, पहला रन डॉट बॉल के बाद आता हुआ, अभी भी कोशिश यहां से करते हुए 3 गेंदों में 1 रन स्कोर बढ़ता हुआ 13 बिना किसी नुकसान के। 76 रन अभी और बनाने हैं। 57 गेंदें आपके पास, 10 विकेट सुरक्षित। ढलती हुई शाम, तीसरे दिन का अंतिम मुकाबला। तरुण स्ट्राइक पर, बैकफुट पर जाकर अच्छा शॉट खेला है, गैप में वो गेंद है लेकिन फील्डिंग बेहतरीन, और बैकअप उससे ज्यादा बेहतर। आप जानते हैं कि आप की टीम में अगर
कुछ खिलाड़ी जिनकी फील्डिंग बेहतर नहीं है तो उनको बैक करना जरूरी है, और एक टीम वर्क आप देखेंगे इस रन चेज में, खासकर जब आप डिफेंड करने उतरते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी सोच, आपकी रणनीति अलग होती है। इस बार लेग स्टंप से बाहर, पहली वाइड इस ओवर से, स्कोर बढ़ता हुआ 14 बिना किसी नुकसान के। वाइड ऐड कीजिए 15 फिलहाल बिना किसी नुकसान के, और 2 गेंद अभी भी इस ओवर से आना बाकी। बल्ला एक बार फिर से घुमाया है, क्या यहां पर कॉट बिहाइंड की अपील, और ये रणनीति होती है जब आप शुरुआती दबाव बनाना चाहते हैं, विकेट आपको उतने आसानी से मिलते नहीं है तो आपको कई बार इस तरह की सिचुएशन बनानी पड़ती है। एक बार फिर से पटका हुआ वो गेंद, बल्ला लगाया जरूर, सिंगल यहां आसानी के साथ मिलेगा, और इस सिंगल के साथ एक बेहतरीन ओवर, जहां उम्मीद थी शायद कुछ रन्स आएंगे, लेकिन बेहतर तरह से उस ओवर को किया यहां, और केवल 4 रन इस ओवर से, 3 ओवर के बाद 16 बिना किसी नुकसान के। तीन ओवर, 3 अलग अलग गेंदबाज, क्या यहां से चौथे गेंदबाज को आप देखेंगे अलग से गेंदबाजी करते हुए, या फिर इन्हीं तीनों में से किसी एक गेंदबाज को रोटेट किया जाता है? फिलहाल एक सटीक शुरुआत की तरफ नजर आती हुई यहां से बल्लेबाजी करती हुई टीम, और डिफेंडिंग करने के लिए एलपीएस के पास अभी भी समय है, और 16, 3 ओवर 16 बिना किसी नुकसान के, और 73 रन अभी, और 54 गेंदे। डॉट बॉल रिक्वायर रन रेट को थोड़ा सा बढ़ाती हुई आगे की तरफ हो गेंद, अच्छा शॉट, टाइमिंग उतना हुआ नहीं, और यहां पहली विकेट, एलिवेशन उतना मिला नहीं, दूरी उतनी मिली नहीं, कनेक्शन हुआ जरूर, और अच्छे से बैंड किया बॉडी को, ओवर पिच वो गेंद, एक अच्छी कोशिश, लेकिन किस्मत का साथ उतना मिला नहीं, जिसके चलते फिलहाल यहां पर पहली विकेट। कोडिंग जॉब बनाते हैं। बंद कर दे यार, बोल रहा हूँ ना इसमें, अपना बंद कर दे। तो पहली कामयाबी, और उस कामयाबी को कितना और बरकरार रख पाती है यहां से एलपीएस। पहला विकेट वाइड के साथ शुरू करते हुए यहां पर मनीष, पहली गेंद पर विकेट, दूसरी वाइड, पहला अतिरिक्त रन इस ओवर से। एक बार फिर अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, हवा में खेला गया, टाइमिंग उतना हुआ नहीं, और
उतनी अच्छी पोजीशन में थे नहीं कि इस फुल टॉस को एक बड़े शॉट में कन्वर्ट कर सके, लेकिन सिंगल के साथ फिलहाल यहाँ खाता खुलता हुआ विशाल का। विशाल और तरुण अब किस तरह यहाँ से पारी को आगे लेकर जाते हैं, विकेट की तलाश। एलपीएस करते हुए एक बार फिर से मिडिल लेग पर वो गेंद हल्के हाथों से खेला उस गेंद को, पहला रन तेजी से, और उम्मीद करेंगे यहाँ पर कि रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतर हो और ये एक दो रन परेशानी का सबब बनेंगे और रन आउट की यहाँ पर जरूर अपील की गई है। और थर्ड अंपायर की तरफ जाएंगे यहाँ से फील्ड अंपायर, और दीपक भाई के पास अब मौका है कि इस ठंड में थोड़े से हाथ खोलें आप भी अपने लैपटॉप पर। तो बढ़िया शुरुआत, पहला रन तेजी से, एक बार फिर से गैप पे धकेला उस गेंद को अच्छे से, यहाँ पर ग्राउंड कवर करते हुए कमिटमेंट पूरी। सिंगल सेवल्स के साथ फिलहाल यहाँ पर पारी आगे बढ़ती हुई। पावर प्ले का वो समय जिसमें आप कोशिश करते हैं कुछ तेज तर्रार रन बनाने की, बाउंड्री का इंतजार। थोड़ा सा लंबा होता हुआ और नो बॉल, स्क्वायर लेग एम्पायर का इशारा यहां पर और एक लाइसेंस मिलेगा बल्लेबाज को और फ्री हिट। अभी तक अच्छी गेंदबाजी थी और शायद कुछ अलग करने की कोशिश, लेंथ आपने मिस की, फायदा बल्लेबाज को मिला और इस फ्री हिट पर ऑफ स्टंप के बाहर से खींचा इस गेंद को हवा में, ये गेंद नीचे, खिलाड़ी कोशिश करते हुए और बढ़िया रनिंग। वो बाउंस अक्सर आप टेनिस बॉल में देखते हैं, उस बाउंस को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हालांकि ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर चले गए तो उस बॉल को डीप स्क्वायर लेग की तरफ धकेलना चाहते थे, पीछे वहां खिलाड़ी है नहीं और टारगेट आप करते हुए ये गैप तलाशते हुए और एक बार फिर से टिप करता हुआ गेंद हवा में, अच्छी कोशिश, बहरहाल मिक्सअप हुआ और यह मौका बन सकता था, अगर कलेक्ट किया होता तो शायद यहां परेशानी में पड़ सकते थे बल्लेबाज। कम्युनिकेशन गैप और अक्सर इस तरह के फिलहाल इस समय 26 रन 4 ओवर का खेल फिलहाल यहां पर पूरा होता हुआ, 4 ओवर के बाद 26, 1 विकेट के नुकसान पर इक्वेशन 63 रन 48 गेंदें और 4 ओवर में 4 गेंदबाज को आजमाते हुए यहां पर एलपीएस विकेट मिला जरूर, लेकिन यहां मौके बने इस ओवर से और कुछ इसी तरह के मौके बनेंगे, उनको लपकना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। साथ ही साथ ड्रिंक्स के बहाने अक्सर कुछ ना कुछ मैसेज पास आउट होता है पवेलियन से, और क्या मैसेज यहां पर रहेगा विशाल और तरुण के लिए, क्या यहां पर ड्यूरिंग अपने नाम की तरह ये बल्लेबाज अपनी टीम को इस समय जो दरकार है रनों की उसको क्या उसी अंदाज में पूरा कर पाते हैं, क्योंकि फासला धीरे धीरे बढ़ता हुआ 7.88 required run rate or approx 6.50 the current run rate, they need some
तो 4 ओवर 26, 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में लगातार आप परिवर्तन देखते हुए, रोटेट करते हुए अपने गेंदबाजों को, क्योंकि किसी एक गेंदबाज के खिलाफ आप चाहेंगे नहीं कि बल्लेबाज सेटल्ड हो और गेंद को पिक कर सके। 10 रनों की वो पार्टनरशिप दूसरे विकेट के लिए। नए गेंदबाज पहली गेंद, अच्छा शॉट, गैप में ये गेंद, एक चेज रहने वाला है, क्या यहां पर गेंद जीतेगी? जी हां, पहली बाउंड्री। काफी देर बाद 4 ओवर का इंतजार के बाद पहला चौका यहां पर लगता हुआ। अब यहां से जो बल्लेबाजी है, जो नाम है टीम का, उस तरह की बल्लेबाजी आप करने की कोशिश की। एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल, अच्छा शॉट, पटका हुआ वो गेंद, गैप में एक बार फिर से एक लंबा चेज, एक बार फिर शुरू होता हुआ और बैक टू बैक बाउंड्री। टारगेट करते हुए यहां पर सत्यम मलिक को दूसरी गेंद सेटल होने नहीं देना चाहेंगे यहां पर। बैक टू बैक 2 बाउंड्री, एक बार फिर से पटका हुआ गेंद, एक बार फिर गेंद हवा में और थोड़ा सा लेट रिएक्शन। अगर थोड़ा पहले रिएक्ट किया तो शायद वो गेंद आपको हाथों में मिलती और परेशानी बन सकती थी, लेकिन बहरहाल इस ओवर को बड़े ओवर में तब्दील करने की पूरी कोशिश यहां पर तरुण की। 2 बाउंड्री और उसके बाद जिस तरह से स्टेप आउट कर रहे हैं पिछली 3 गेंदों पर, गेंदबाज की भी तारीफ करनी होगी, थोड़ा सा दूर रखते हुए इस हिटिंग जोन से, लेकिन इस बार फुल टॉस, डिप करता हुआ गेंद, सिंगल मिलता हुआ। 11 रन फिलहाल पिछली 4 गेंदों में और ओवर थ्रो। बैकअप जरूरी, आप कोशिश करें यहां से कि जो अतिरिक्त रन है, खासकर ओवर थ्रो या वाइड या नो बॉल्स से थोड़ा सा परहेज करें, क्योंकि स्कोर बोर्ड पर आपने जो लक्ष्य दिया है वो चेजेबल तो है, लेकिन उसको आप कितना टफ कर सकते हैं वो आपकी गेंदबाजी के ऊपर और आपके गेंदबाज की काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है। बहरहाल 11 रन पिछली 3 गेंदों में और स्ट्राइक पर विशाल, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर तरुण। अगली गेंद एक बार फिर से पटके हुए, कुछ अलग करने की कोशिश। स्ट्रेंथ पर बल्लेबाजी मेरे हिसाब से बेहतर रहेगी, क्योंकि आप विकेट के आगे बेहतर खेल सकते हैं कंपैरिजन विकेट के पीछे, क्योंकि विकेट के पीछे खेलने के लिए आपको गति चाहिए गेंदबाज से, और वो गति या वो जो एक लेंथ पिक करनी होती है, उस तरह की लेंथ अभी तक इस ओवर से देखने को मिली नहीं है। पिछली 10-11 गेंदों में 21 रनों की वो साझेदारी। एक बार फिर पटका हुआ वो गेंद, नो बॉल यहां पर, क्योंकि 2 टप्पे लगे हैं और इसी के चलते यहां नो बॉल। और जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि अतिरिक्त रन से थोड़ा सा परहेज जरूरी है, लेकिन इस ओवर में सब कुछ घटता हुआ। बाउंड्रीज आ गई, नो बॉल आ गई और जगह बनाकर इस गेंद को फाइन लेग की तरफ बड़े शॉट में तब्दील करना चाहते हैं। टाइमिंग उतना अच्छा हुआ नहीं और पोजीशन जो बहुत मैटर करती है, खासकर जब आप लेग साइड पर गेंद को बड़े हिट में तब्दील करना चाहते हो तो आपका बॉडी वेट उसमें एक अहम रोल अदा करता है। अगर आप थोड़ा जल्दी बैकफुट पर खेल जाते हैं तो फिर वो गेंद को उतनी टाइमिंग मिलती नहीं है, ना उतना अच्छा कनेक्शन हो पाता है। लेकिन इस बीच एक बेहतरीन ओवर, 5 ओवर के बाद 40
एक विकेट के नुकसान पर और 14 रन इस ओवर से आए हैं। साझेदारी बढ़ते हुए 24 रनों के महज 13 गेंदों में दूसरे विकेट के लिए 49 रन 42 गेंदे। 7 ओवर का खेल यहाँ पर बचा है। अंतिम मुकाबला आज के दिन का। LPS एक रणनीति, 5 ओवर 5 गेंदबाज, कदमों का इस्तेमाल और एक बार फिर से अलोंग द ग्राउंड खेला गया। अच्छा शॉट, मिस फील्ड और निश्चित तौर पर 1 रन और मिल जाएगा। यहाँ थोड़ा सा टाइट करनी होगी फील्डिंग, क्योंकि इक्वेशन धीरे धीरे कम होती है। जो फासला है गेंद और रनों के बीच का, वो फिलहाल इस समय कम होता हुआ। जहां सिंगल होना चाहिए तो वहां 2 रन आते हुए, और इस बार हल्के हाथों से खेला, उस गेंद को सिंगल्स में किया है तब्दील। अदिति मैम का ये दूसरा ओवर। पहले ओवर में 4 रन दिए थे और यहां से पिछली 2 गेंदों में 3 रन। स्ट्राइक लगातार रोटेट होती, साझेदारी यहां से बढ़ती हुई जीत की तरफ धीरे धीरे अग्रसर यहां से बल्लेबाजी करते हुए टीम। और ये दो खिलाड़ी फिलहाल समय लेते हुए और बेहतर तरह से एग्जीक्यूट किया है अभी तक। दोनों के बीच का तालमेल, खासकर ओवर के बीच जब वो बातचीत होती है, तो वो दर्शाता है कि आप इस मुकाबले को कितना सीरियस ले रहे हैं, किस तरह से आप रनचेज, किस तरह से आप अपनी पारी को आगे लेकर जाना चाहते हैं। एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, विकेट गिरा, 26 रनों की वो साझेदारी। आगे की तरफ हो गेंद उठाया है, गति मिली नहीं है, नीचे खिलाड़ी क्या यहां पर पकड़ेंगे क्या? जी हाँ, एक और गोल्डन मूवमेंट ऑफ इस मुकाबले का। गति दी नहीं, बल्ला चलाया, एज लगा और एक झटका यहां पर, और वो भी ऐसे बल्लेबाज का जो अच्छे फॉर्म में नजर आ रहा था, और सही समय पर विकेट मिलती हुई यहां से एलपीएस को। तो अदिति मैम के खाते में पहली कामयाबी, और वो भी सही समय पर। आखिरकार यहां पर विकेट मिला है। एक पार्टनरशिप जो परेशानी का धीरे धीरे सबब बन रही थी, आखिरकार उसे तोड़ने में मिली है कामयाबी। विशाल वापस मैदान से बाहर, और तरुण के साथ अब देखना रहेगा किस तरह से आगे बढ़ती है यहाँ पर डिविनियंस की पारी। और विकेट, बहरहाल क्या यहाँ से और मौके बनते हैं, क्योंकि बड़े शॉट खेलने के लिए आपको गति चाहिए, और वो गति लगातार जब गेंदबाज छीन लेता है तो मजबूरन कुछ इस तरह के शॉट्स आप देखते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मिस टाइम होता है और फिर आपको आपका विकेट गंवाना पड़ता है। लेकिन शायद ये गलत शॉट सिलेक्शन था, आप स्ट्राइक रोटेट कर सकते थे। 46 रन 39 गेंदे, गेंद रनों के बीच का फासला ज्यादा है नहीं, लेकिन आज यहां पर इस समय आपका एक्सपीरियंस, आपकी एबिलिटी का टेस्ट होना है, क्योंकि आप का अगर शॉट सिलेक्शन थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो फिर आपके विकेट गिरने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, और आते यहाँ पर खाता खुलता हुआ। नेहा मैम नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर
तरुण सर स्ट्राइक पर, एक उम्मीद। 29 रन 22 गेंदों में 2 बाउंड्री, 131 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। एकमात्र ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने अभी तक डोमिनेट किया है अपनी पारी को अपनी टीम के लिए। कमिटमेंट हर एक खिलाड़ी से आप उम्मीद करते हैं, क्योंकि इस तरह के बड़े टूर्नामेंट में अगर आपको दूर तक जाना है तो हर एक खिलाड़ी का योगदान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, खासकर कप्तान के लिए। आप कितने इफेक्टिव साबित हो पाते हैं, उनकी रणनीति के जो प्लान है उस प्लानिंग के कितने आप इम्पॉर्टेंट पार्ट हो, वो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। एक बार फिर फुल टॉस, आगे आकर अच्छे से मैनेज किया उसको। और कई बार ऐसा होता है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि गेंद धीमा आएगा और इस तरह की फुल टॉस, और ऐसे में अगर आप हल्का सा भी लापरवाह हुए अपने शॉट्स को लेकर तो फिर वो गेंद हवा में रहती है और फिर विकेट गिरने के चांसेस बनते हैं। और मौके दे रहे हैं गेंदबाज कि आप शॉट्स खेलिए और देखते हैं आप किस तरह से इस मुकाबले में रन्स बनाते हैं। लेकिन बहरहाल सिंगल सिवल्स के साथ एक और बढ़िया ओवर फिलहाल यहां से समाप्त होता है विकेट के साथ। इस ओवर की समाप्ति यानी 6 ओवर के बाद 46 2 विकेट के नुकसान पर, और काफी किफायती रहे। 6 रन आए हैं सिंगल सिवल्स के रूप में और 1 विकेट। तरुण सर और नेहा मैम फिलहाल यहाँ से अपनी टीम के लिए पारी को संभालने की कोशिश करते हुए, और सवाल यही रहेगा कि बचे हुए ओवर्स में आप कितने ज़्यादा विकेट या कितनी ज़्यादा परेशानी या कितने हर्डल्स आप इस रन चेज में बतौर गेंदबाजी करती हुए विपक्षी टीम पर कितना आप दबाव बना पाते हैं। ढलती हुई शाम के बीच ये मुकाबला फिलहाल अभी भी चलता हुआ। 6 ओवर आज के इस आखिरी मुकाबले के, 43 रन 36 गेंदों में, यानी 6 ओवर, अंतिम 6 ओवर। और अच्छे से रोटेट किया है यहाँ पर एलपीएस ने अपने गेंदबाजों को। जो कोटे के ओवर हैं चाहते हैं कि जल्द से जल्द खत्म हो, और ऐसे में अगर एक आधा विकेट और मिल जाए तो फिर बल्लेबाजी कर रही टीम के लिए थोड़ा सा मुश्किल आप पेश करना चाहेंगे। इतना आसान होने वाला है नहीं। करीब ले जाने की कोशिश करती हुई यहाँ पर चेजिंग टीम, डिफेंडिंग टीम लगातार अपने प्लान्स में तब्दीलियां करते हुए, लगातार फील्डिंग में तब्दीलियां करते हुए, गेंदबाजों का रोटेशन बेहतर रहा है अभी तक। कैप्टन ने जिस तरह से अपने गेंदबाजों को रोटेट किया, और एक बार फिर आप एक और नया गेंदबाज हवा में, ये शॉट गैप में जरूर, क्या यहाँ दो की मांग थी लेकिन वापस भेजा गया और ओवर थ्रो, लेकिन विकेट के तौर पर यहाँ कहते हैं कि जो घटता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन इस समय जो हुआ है वो एलपीएस के लिए, क्योंकि उनको विकेट मिला है। और ओवर थ्रो पर एक और झटका यहाँ पर लगता हुआ, एक और रन आउट। नेहा मैम को वापस जाना होगा। तो 6.1 ओवर की गेंदबाजी, 47 रन 3 विकेट, 42 रन अभी और बनाने 35 गेंदों में, और विकेट
मिलता हुआ फिलहाल रनआउट के रूप में, और नितिन भाटिया फिलहाल यहाँ पर स्पेल का दूसरा ओवर, 3 रन अभी तक दिए हैं, विकेट मिलता हुआ LPS को। तो जिस तरह से गेंदबाजों को रोटेट किया है और थोड़ा सा अंकुश या कह लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर समय लेते हुए अगली गेंद पैड पर एक बार फिर रन्स मिलेंगे और सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट होती है। तरुण एक बार फिर से होंगे स्ट्राइक पर, और दूसरे एंड से आपको सहयोग की जरूरत है क्योंकि एक तरफा आप इस मुकाबले को कोशिश करेंगे समाप्त करने की। एंकर रोल यहाँ पर तरुण का, क्योंकि एक छोर से आप लगातार विकेट जो है गंवाते हुए एकमात्र ऐसे बल्लेबाज जो फिलहाल 30 रन पर बल्लेबाजी करते हुए, थोड़ा सी चहलकदमी पिच पर, अच्छा एक शॉट, और सबसे अहम हो जाता है कि इस तरह की आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद को आप अलोंग द ग्राउंड खेलते हैं तो उसमें विकेट गिरने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। आउटफील्ड से उतनी ज़्यादा मदद है नहीं, या कह लीजिए आउटफील्ड उतना तेज है नहीं कि आप फील्डर को बीट करें और वो गेंद सीमा रेखा के बाहर जाकर रुके। बढ़िया गेंद आगे की तरफ, मिस फील्ड जरूर, लेकिन दूसरे एंड पर उतना अच्छा रिस्पांस मिला नहीं। रन चाहते थे यहाँ पर तरुण, और शाउटिंग आप देखेंगे, और ये जरूरी भी है, आप अगर अपनी टीम को चेयर अप करना चाहते हैं, विपक्षी टीम पर अगर आपको दबाव बनाए तो कुछ इस तरह की शाउटिंग जरूरी हो जाती है। और इस बार रन्स जरूर यहाँ पर मिलेंगे, और लेग बाय के रूप में रन्स आते हुए सिंगल, और इस सिंगल के साथ 50 रन इस बीच यहाँ पर पूरे होते हुए 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद अभी इस ओवर से आना बाकी है, किफायती ओवर। चाहेंगे यहाँ पर स्ट्राइक अपने पास रखना तरुण, और देखना रहेगा कि फील्ड किस तरह से रहती है, कहाँ मुश्किल पेश कर पाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से पूरे ओवर खेल जाती है टीम तो बचे हुए रन आसानी के साथ पूरे होंगे। एक बार फिर से बाउंस मिला है, और आखिरी समय पर शॉट सिलेक्शन में तब्दीली कर कर स्ट्राइक को किया है रोटेट। सिंगल के साथ ओवर होता हुआ समाप्त। 7 ओवर के बाद 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर 38 रन अंतिम 5 ओवर में आपको हासिल करने हैं, और कितना मुश्किल पेश कर पाती है LPS की टीम ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इस समय जो अहमियत है विकेट की वो है तरुण, अगर उनका विकेट गिरता है तो शायद थोड़ा सा परेशानी या थोड़ा सा दबाव महसूस करेंगे, लेकिन जब तक एक सेट बल्लेबाज एक छोर पर खड़ा है तो कुछ भी कहना यहाँ से थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। अनिश्चितताओं का ये खेल कभी भी पलट सकता है। विकेट गिरेंगे तो निश्चित तौर पर LPS दबाव बनाने में कामयाब होगी, वहीं दूसरी तरफ अगर रन्स आते हैं तो फिर LPS खुद दबाव महसूस करेगी। लेकिन सवाल ये है कि कितना और नज़दीक आप लेकर जाते हैं, वो जो फासला है उसको कितना आप कम करते हैं, क्या अवेयरनेस है आपकी टेक्निक कैसी है, आप अपनी बल्लेबाजी को या खुद को कितना बेहतर तरह से जानते हैं। इस तरह की सिचुएशंस में शॉट सिलेक्शन क्या रहना चाहिए, सिंगल डबल्स पे फोकस रहेगा या ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक आप अपने पास रखते हैं, ये एक बड़ा सवाल होगा। और कई सारे सवाल चलते हैं जब आप रन चेज करते हैं किसी भी टीम के खिलाफ, किसी भी कंडीशन में, किसी भी मैदान पर, किसी भी फॉर्मेट में, तो कई सारे सवाल चलते हैं और उन सवालों का जवाब आपको खुद देना होता है। और कुछ उसी तरह की कंडीशन इस समय शायद तरुण फेस कर रहे होंगे, क्योंकि दूसरे छोर से उन्होंने लगातार 3 विकेट देखे हैं गिरते हुए, और दूसरे एंड से एक मॉरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, खासकर जब आप किसी भी टूर्नामेंट के अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहे हो। तो कोशिश यही रहती है कि एक हैप्पी एंडिंग आप अपनी टीम के लिए करें, ताकि कुछ एक
हैप्पी मूवमेंट्स जब आप हाइलाइट्स देखें या जब आप डेस्क पे बैठ के बात करें एक दूसरे से, तो वो मूवमेंट्स आपको और आपके चेहरे पे स्माइल आते हैं। और एक बार फिर एक और परिवर्तन गेंदबाज में लेफ्ट साइड पर, और ये हाथों से निकलता हुआ फुल टॉस, वो गेंद पैरों पर केवल कलाइयों को रोल किया और बढ़िया गेंद और उसको उतने ही खूबसूरत तरह से गैप में धकेला। मिसफील्ड हुई है, दूसरे रन की मांग होगी जरूर यहां पर, लेकिन जो थ्रो एंड था वो गलत था। अगर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर होता तो शायद यहां पर परेशानी बढ़ सकती थी, लेकिन दुष्यंत को एक बार फिर से यहां पर टारगेट करते हुए तरुण पहले ओवर में भी थोड़ा सा परेशान किया था। 9 रन हासिल किए थे आपने, पहली गेंद पर बाउंड्री हासिल की है। अब केवल आपको यही करना है कि स्ट्राइक रोटेट करें, सिंगल्स डबल्स के साथ भी 8 या 9 ओवर रन जो है इस ओवर से आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन गेंदबाज की काबिलियत को आप कितना ज्यादा चैलेंज कर पाते हैं। एक बार फिर से ये मैच्योरिटी है, फासला कम करते हुए नजदीक ले जाने की कोशिश। 7 रन 3 गेंदों पे आ चुके हैं, अगली 2 गेंदों में अगर रन नहीं भी आते हैं तो भी आपने इस ओवर से उस बाउंड्री की मदद से वो जो गैप था उसको फुलफिल कर लिया है। 58 रन बोर्ड पर, 7.3 ओवर की गेंदबाजी, 3 विकेट का नुकसान, 11 रनों की ये साझेदारी। एक अतिरिक्त फील्डर बल्लेबाज के करीब, क्या उस सिंगल्स को आप ब्लॉक कर पाएंगे? एक बार फिर से प्ले और मिस, तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत है नहीं। आप 7 रन पहले ही बना चुके हैं इस ओवर से, 2 गेंदें अभी भी इस ओवर से आना बाकी है। स्कोर है 59 रन। भाई थी बढ़िया गेंद, एक बार फिर से, इस बार डॉट बॉल काउंट होगी क्योंकि पिछली गेंद वाइड करार दी गई थी। 8 रन अभी तक इस ओवर से आ चुके हैं, 2 गेंदों का आना अभी भी बाकी। 30 रन 26 गेंदें, 7 विकेट पूरी तरह से सुरक्षित। एक विकेट की तलाश यहां पर जरूर रहेगी। एक बार फिर से बल्ले का मुंह जल्दी खोला, जिसके चलते एक बार फिर वो गेंद जो है करीब से निकलती हुई। दूसरे एंड से साथ चाहिए यहां पर तरुण को, क्योंकि गेंद और रनों के बीच का ज्यादा फासला है नहीं। आप कितना ज्यादा टिक सकते हैं एक सेट बल्लेबाज, जिसके लिए रन्स बनाना थोड़ा सा आसान हो गया है, क्योंकि जब गेंद जैसे जैसे बल्ले पर लगती जाती है वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और हर तरह की कोशिश यहाँ पर होती है। इस बार बल्ले के नीचे वो गेंद, अच्छी फील्डिंग, हालांकि वो टप्पा पड़ने के बाद गेंद ने थोड़ी सी दिशा बदली थी, लेकिन उसको अच्छे से मैनेज किया। और बैकअप आप देखिए बेहतर तरह से, कोशिश यहाँ पर यही है कि आप थोड़ा सा परेशानी पेश की जाए, लेकिन एक बढ़िया ओवर, और इस ओवर से 9 रन आते हुए 8 ओवर के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 63 विकेट के नुकसान पर। इक्वेशन पर अगर आप नजर डालेंगे तो 29 24 गेंदें, यानी अंतिम 4 ओवर इस मुकाबले के। करंट रन रेट 7.50, रिक्वायर रन रेट 7.25, तो ज्यादा फर्क है नहीं। और अगर इसी तरह से हर एक ओवर में एक बाउंड्री मिलती है तो निश्चित तौर पर टाइम से पहले, यानी जो ओवर्स है उससे पहले कोशिश करेंगे कि यहाँ थोड़ा सा नजदीक और लेकर चले, अंतिम ओवर तक या अंतिम गेंद तक, चाहे कि नहीं यहाँ पर बल्लेबाजी कर रही टीम की इस मुकाबले को अंतिम गेंद तक लेकर जाएं और उससे पहले खत्म करना चाहेंगे। जबकि एलपीएस के लिए जरूरी होगा कि जितना आप बांध कर रखें, खासकर वो जो गैप्स है ना, उनको अगर फुलफिल कर लें, सिंगल्स आसानी के साथ ना आते, बल्लेबाज को रिस्क उठाने का मौका दे, तो कहीं ना कहीं वो चांस बनता है और यहाँ से वो कप्तान, वो टीम जीतेगी जो थोड़ा सा डेयरिंग खेल खेलेगी, थोड़ा सा वो नोटबुक से हटकर अगर बल्लेबाजी होती है या गेंदबाजी होती है
तो निश्चित तौर पर एक अच्छा मुकाबला आप देखेंगे यहाँ से। अंतिम 24 गेंदें, अंतिम 4 ओवर। दुष्यंत के 2 ओवर 18 रन, नितिन के 2 ओवर 6 रन, 3 विकेट अभी तक यहाँ पर गिरे हैं। एक बार फिर से अच्छा शॉट इस बार, लेकिन सिंगल के साथ संतोष करना पड़ेगा। बाउंड्री के बाहर अगर आप सहयोगी खिलाड़ी देखेंगे तो हर गेंद पर इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए, और जरूरी भी हो जाता है क्योंकि आप ग्राउंड के साथ साथ ग्राउंड के बाहर भी अगर अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर बल्लेबाज थोड़ा सा रिलीफ महसूस करता है। और जब बल्लेबाज थोड़ा सा फ्री होता है तो फिर आसानी हो जाती है उसके पास भी, उसके लिए भी बल्लेबाजी करना, क्योंकि वो जो सवाल लगातार वो दिमाग में रहते हैं। ऐसी कंडीशन में जब आप मैच को खत्म करने की तरफ ले जा रहे हैं या मैच अपने अंतिम कुछ ओवर की तरफ है, तो ऐसे में सवाल आते हैं, लेकिन उन सवाल्स को आप इस तरह के शॉट्स के साथ नेगेटिविटी को दूर करते हैं। और फुल टॉस, सिंगल, स्ट्राइक रोटेट होती हुई, और ये दर्शाता है कि आप चाहते नहीं यहाँ से अगले 1 या 2 ओवर और किसी तरह का रिस्क ले या किसी तरह का आड़े तिरछे बल्ले से शॉट्स खेलें या मौका बने विपक्षी टीम को विकेट हासिल करने का। स्ट्राइक रोटेट होती हुई, स्कोरबोर्ड लगातार चलता हुआ, आप लक्ष्य के करीब पहुंचते हुए। एलपीएस के लिए जरूरी है कि ये सिंगल्स रोकना। शॉर्ट पिच वो गेंद हिटिंग जोन से थोड़ा सा दूर, कैप तलाशने में फिलहाल थोड़ी सी परेशानी। 3 गेंदों में 2 रन, 62 रन बोर्ड पर, 27 रन अभी और बनाने हैं। 3 गेंदें इस ओवर से आना अभी बाकी। 21 गेंदों का ये मुकाबला, 27 रन जीत के लिए। डाउन द लेग साइड, ये गलती से बचना होगा, इस तरह की गलती से बचना होगा आपको, क्योंकि आप एक अतिरिक्त रन भी दे देते हैं और उसी ओवर में एक गेंद और एक्स्ट्रा आपको डालनी पड़ती है। तो और जब मुकाबला थोड़ा सा नजदीक होना, जब टाइट कंडीशन हो, तो आप खुद को बैक करना होता है। और किस तरह आप लाइन पकड़ते हैं ये देखने वाली बात रही, लेकिन ये अच्छा शॉट है स्क्वायर लेग की तरफ। डीप में खिलाड़ी जरूर मौजूद है और हल्का सा वो फंबल, और बढ़िया रनिंग, कमिटमेंट के पूरे नंबर। और वो जो बाउंस मिलता है ना थ्रो के टाइम पर टेनिस बॉल से, उसको मैनेज करना या समझना हर एक खिलाड़ी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप टप्पे से थोड़ा पास चले जाते तो वो गेंद बाउंस लेकर आपके ऊपर से निकलती है, लेकिन इस बीच बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन और जुड़ते हुए, और 1-1, 2-2 रन के साथ फिलहाल इस मुकाबले का रोमांच और ज्यादा बढ़ता हो। 65 रन, 3 विकेट, 8.4 ओवर की गेंदबाजी, 24 रन, 20 गेंदें, 1 ओवर, जिसमें फिलहाल अभी तक 5 रन आ चुके हैं। 2 गेंदें अभी भी आना बाकी, 1 वाइड, 2 सिंगल, 1 डबल। स्पेल का ये दूसरा ओवर, मनीष विकेट भले ही हासिल कर चुके, लेकिन विकेट की वो लाइन जिस पर उनको क्लीन बोल्ड के तौर पर 1 विकेट मिला था, वो उसी लाइन को तलाशने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जो बैट का फ्लो है ना, वो सेकंड स्लिप की ओर से आता है। तो अगर वो पैरों में गेंद रहती है तो वो डिफेंस करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा बल्लेबाज के लिए। एक बार फिर वही आगे की तरफ गेंद, एक बार फिर से बल्ला घुमाया है, टप्पा पड़ने के बाद गेंद घूमी है, सिंगल इस बार, और सही निर्णय भी। आप स्ट्राइक अपने पास रखिए, आखिरी गेंद है। सवाल यह कि एलपीएस क्या यहाँ से इस आखिरी गेंद पर सिंगल्स रोक पाने में कामयाब हो गया। अगर इस नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर तरुण को रखते हैं तो फिर वो रोमांच बना रहेगा, क्योंकि यहाँ से अभी भी 19 गेंद इस मुकाबले के 66 रन बोर्ड पर, 23 रन अभी और बनाने। और क्या ये सिंगल को लेकर दोनों खिलाड़ियों के बीच बात, क्योंकि ये जो गैप आप देख रहे हैं ना, वो दिखता है, लेकिन फॉलो थ्रू में आप गेंदबाज से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या लाइन रहनी चाहिए यहाँ पर। बल्ला घूमेगा जरूर, लेकिन उस बल्ले को घूमते हुए कितना आसानी के साथ आप रोक पाते हैं। डाउन द ग्राउंड, अच्छा शॉट, पहला रन के साथ यहाँ पर मिसफील्ड, और वेट फॉर द सिग्नल, यस इट इज अ 4। और ये मिसफील्ड के चलते ऐसे नाजुक मौके पर आप इस तरह से
जहां सिंगल होना चाहिए था वहां पर 4 रन दिए और इस 4 रन के साथ ओवर हुआ है समाप्त। 70 रन बोर्ड पर 9 ओवर फिलहाल यहां पर समाप्त होते हुए। बैट भी लगवा दे। भाई टेप हटाई देता हूँ ना। भाई आराम कर लो। अरे नहीं, अब कर लूंगा। होने वाला है क्या? हाँ खत्म नहीं होने वाला, 18 ही तो है। टेप हटा दो ना, रुक जरूर फंसा दूंगा। वो भी कर रहे हो ना प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन आपने बोला था तो। करा था एक मैच। एक किया था ना, एक किया था भाई। ये आज का एक दिन का कोटा तरफ याद है, ठीक है? देखा नहीं मैंने। रिकॉर्डिंग है, साइलेंट रिकॉर्डिंग भी लाइव है लाइव है। तो 9 ओवर 70, 3 विकेट के नुकसान पर आखिरी 18 बॉल यानी आखिरी 3 ओवर आज इस अंतिम मुकाबले के। एक बार फिर सवाल पूछना होगा यहाँ पे एलपीएस के गेंदबाजों को, क्योंकि इत्मीनान के साथ फिलहाल इस मुकाबले में जीत की तरफ धीरे धीरे बढ़ती हुई, लेकिन विकेट और जो चाहिए उसको कितना जल्द हासिल किया था। एक बार फिर से आगे की तरफ वो गेंद, एक अच्छा थ्रो होना चाहिए यहां पर रनआउट के लिए, लेकिन सिंगल और सिंगल सबल्स के साथ फिलहाल यहां पर पारी आगे बढ़ती हुई। एक रन चेज जिसमें आप उम्मीद कर रहे थे कि शायद थोड़ा सा उतार चढ़ाव आप देखेंगे, लेकिन वो सिंगल्स डबल्स की साझेदारियों ने इस मुकाबले में वो रोमांच उतना ज्यादा बढ़ने नहीं दिया है, लेकिन छोटी छोटी साझेदारियां कम गेंदों में, जिसके चलते फिलहाल इस समय इस मुकाबले में यहां से किस तरफ आप गेम को लेकर चलते हैं ये देखने वाली बात होगी। सिंगल्स ब्लॉक करने होंगे, डायरेक्ट हिट कुड बी अ चांस, और यहां 2 मौके पिछली 2 गेंदों पर मुकाबले का रुख शायद बदल सकता था अगर ये गेंद विकेटों में लगती। और एक सेट बल्लेबाज तरुण अर्धशतक से 5 रन अभी भी दूर, 4 बाउंड्री, 45 रन 31 गेंदों में, 145 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, 17 रन अभी भी चाहिए। और रोमांच यहां पर बढ़ता हुआ हर एक गेंद पर, कुछ इसी तरह के सिंगल्स, कुछ इसी तरह के टाइडी सिंगल्स आप देखेंगे। और यहां से 2 चीजें होंगी, अगर आप डिफेंसिव हुए तो फिर मुकाबला जो है एलपीएस के हाथों से निकलेगा। यहां थोड़ा अटैक करने की कोशिश और मौका यहां पर रन आउट का, और पहुंच गए हैं यहां पर। इस तरह के सिंगल्स आप देखेंगे पिछली 3 गेंदों में सब कुछ घटा, और लगातार 3 गेंदों पर अगर विकेट मिले होते, अगर ये रन आउट हुए होते, तो फिर एक बार फिर जो रोमांच, जो थ्रिल आप अंतिम ओवर्स में चाहते हैं, खासकर रन चेज के समय पर, दबाव दोनों ही टीमों पर है। ऐसा नहीं है कि आपके पास विकेट है तो आप इस मुकाबले को आसानी से जीत लेंगे। एक चैलेंज करती हुई यहां पर एलपीएस 26 रनों की साझेदारी। तरुण को आप ज्यादा से ज्यादा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप दबाव बनाने में सफल होंगे, लेकिन सिंगल्स, और ये सिंगल्स रोकना जरूरी इस समय एलपीएस के लिए। थोड़ा सा
अटैक करना ज़रूरी है और लाइन और लेंथ खासकर फील्ड जिस तरह की आपने सजाई है, जिस तरह से आपने फील्ड लगाई है, उस तरह की अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो वो मुश्किल रहेगा बल्लेबाज के लिए भी फील्डर के ऊपर से उस गेंद को निकालना, क्योंकि 9 ओवर पुराना गेंद है, उतना हार्ड रहा नहीं होगा, बाजू की ताकत लगेगी, टाइमिंग लगेगी और इस ग्राउंड से आप अगर ये एक्सपेक्ट करें कि बढ़िया हाथों में एक बार फिर से मौका बनता हुआ, क्या इस बार कलेक्ट करेंगे? जी नहीं, एक और मौका था यहाँ पर और काफी निराश होंगे खुद से। और सही टेक्निक, सही थिंकिंग बॉलर की, क्योंकि फुल टॉस रखा और वो एक्सपेक्ट नहीं किया था बल्लेबाज ने भी। पिछली 5 गेंदों में 5 मौके बने यहाँ पर एलपीएस के लिए, लेकिन वो विकेट अभी भी इस ओवर से आखिरी गेंद का आना बाकी है। और पिछली 5 गेंदों में 5 मौके, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से जो सिंगल्स चुराए गए और ये आखिरी जो इंसिडेंट अभी हुआ है वो विकेट दिलवा सकता था एलपीएस को। और अब सवाल ये है कि आप तरुण को नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर कितना देर रख सकते हैं, क्योंकि आप इस समय चाहेंगे जितना देर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर तरुण रहेंगे तो उतना ज़्यादा आप गेंद और रनों के बीच का वो फासला बढ़ा पाएंगे, क्योंकि एक सेट बल्लेबाज का नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर होना चेज करते हुए उनके कंसंट्रेशन को, उनकी समझ को, उनके धैर्य को थोड़ा सा यहाँ पर परेशान करता है। और जब आप आखिरी गेंद 74 रन 10वें ओवर से डाउन द लेग साइड, इस चीज से बचने की कोशिश करनी होगी और अतिरिक्त रन आप दे नहीं सकते इस कंडीशन में, लेकिन विकेट कीपर की करनी होगी तारीफ। इस बार कोई गलती नहीं की और एक बार में वो कलेक्ट किया उस गेंद को, और अक्सर बहुत मुश्किल होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए डाउन द लेग साइड उस गेंद को कलेक्ट करना। फिर से आगे की तरफ एक बार फिर क्रॉस बल्ला चढ़ाया है, लेकिन रन चुनाने में मिलती हुई सफलता। और आखिरी गेंद पर लेग बाय का इशारा यहाँ एम्पायर का, और वो जो क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी आगे की तरफ, वो गेंद सही सोच यहाँ पर नितिन की, लेकिन सिंगल्स रोकने में थोड़ी सी यहाँ पर परेशानी पेश आती हुई एलपीएस को। बहरहाल 10 ओवर 76 रन 3 विकेट, आखिरी 12 बॉल 13 रन। कोटे के ओवर्स जो बचे हुए हैं उनको किस तरह से यहाँ पर पूरा करते हैं, यहाँ से गेंदबाज कप्तान सत्यम के ऊपर भी जिम्मेदारी। पहले ओवर में 14 रन दिए थे, उसके बाद से खुद को हटाया गेंदबाजी से, लेकिन रोटेशन आज बेहतर रहा है। 5 गेंदबाज आजमाए हैं, दुष्यंत सिंह, अदिति मैम, मनीष और खुद कप्तान। थोड़ा सा डिस्कशन चलेगा, थोड़ा समय लेंगे, क्योंकि आखिरी 12 गेंदें, आखिरी 2 ओवर और उसमें 13 रन विपक्षी टीम को बनाने से आप किस तरह से रोक पाते हैं। अटैकिंग फील्ड की जरूरत रहेगी, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आप चाहेंगे तरुण को रखना, और लास्ट गेंद पर जो सिंगल हुआ था उसके चलते तरुण नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है, यहाँ से गेंद मिस कराना होगा। और जो स्टार्ट रहता है ना नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खिलाड़ी का, अगर आपको वो रूल्स पता है कि बॉल रिलीज होने से पहले अगर आपने स्टंप में टच कर दी और खिलाड़ी बाहर होता है तो एक विकेट मिल सकता है। और क्या वो सोच, क्या वो रूल्स दोनों ही खिलाड़ियों के बीच दिमाग में रहेगा, खासकर कप्तान क्या उस चीज के लिए अपने गेंदबाज को पॉइंट आउट करेंगे, और तरुण के लिए कितना मुश्किल होगा जब तक गेंद रिलीज नहीं होता तब तक क्रीज में बैट को टिकाए रखना। कई सारे सवाल हैं, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएंगे इन आखिरी 12 गेंदों में। अंतिम मुकाबला डिस्कशन के बाद एक बार फिर तैयार होते हुए विकेट कीपर चेंज किया है, जरूरी भी है क्योंकि ये आखिरी मौका है आपके पास। किसी भी तरह की कोई भी गलती आप चाहेंगे नहीं कि अब एक भी रन, खासकर अतिरिक्त ओवर थ्रो, 9 बॉल या वाइड हो। आगे की तरफ वो गेंद और फिलहाल तलाशते हुए, और ये थोड़ा सा बैकअप करना होगा, थोड़ा सा सोचना होगा आपको।
आखिरी 12 बॉल 12 रन वाइड के साथ शुरू होता हुआ ये 11वां ओवर। दबाव है, दबाव दोनों ही टीमों पर है, लेकिन आप बना चुके हैं और दूसरी टीम को बनाने हैं। ये एक पॉजिटिव थिंकिंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और अच्छा शॉट, पीछे कोई खिलाड़ी है नहीं, 2 रन जरूर चाहेंगे यहां पर। एक ऐसा खिलाड़ी जिससे अभी तक ज्यादा शॉट देखने को मिले नहीं, लेकिन साथ पूरा निभाते हुए यहाँ पर तरुण की भी तारीफ करनी होगी। विश्वास जताते हुए, विश्वास दिखाते हुए अपने पार्टनर पर। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। आखिरी 11 बॉल 10 रन 7 विकेट। विकेट की तलाश कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक बार फिर से गैप में, और बल्ले के नीचे आप अगर इस तरह से खिलाते रहेंगे तो बैट चलता है, और जिस दिशा में चलता है वो गैप है, और काफी बड़ा गैप। और 3 रन इस बीच यहां पर मुकम्मल। सही समय पर गेंद जो है बल्ले से टच होती हुई, और ना केवल टच होती हुई बल्कि रन्स आते हुए यहां पर 7 रन आखिरी 10 बॉल। अगर ये गेंदें मिस हुई होती तो शायद थोड़ा सा दबाव होता बल्लेबाजी कर रही टीम पर, लेकिन 4 रन दूर अपने अर्धशतक से तरुण, और 7 रन दूर इस मुकाबले को जीत में तब्दील करने से। क्या यहां पर कदमों का इस्तेमाल, वो दिशा, वो स्पॉट उन्होंने पॉइंट कर लिया है। उनको पता है कि कदमों का इस्तेमाल करके अगर बॉलर के सर के ऊपर से निकालेंगे, हल्का सा वो जो गैप है, वो जो एक एरिया खाली दिख रहा है जहां पिछली 2 गेंदों पर रन आए थे, उसी एरिया को शायद यहां पर टारगेट करने की कोशिश होगी। और 46 रन 32 गेंदों में 4 बाउंड्री। कलाइयों के सहारे से निकाला इस गेंद को फाइन लेग की तरफ। पहला रन तेजी से, दूसरे की मांग जी नहीं, यहां पर वापस और करीब ले जाते हुए। 90s का वो दौर याद आता है जब आप चेस करते थे, कोई भी टीम करीब ले जाने की कोशिश करती थी, और कुछ उसी तरह की बल्लेबाजी इस समय। और जरूरत है नहीं यहां पर किसी तरह का आप रिस्क ले। 6 रन चाहिए, 8 गेंदें बची हैं। सेकंड लास्ट ओवर इस पारी का LPS के लिए। ये जो 36 रन की जो टारगेट, 36 रन इस लक्ष्य को हासिल करने में जो पार्टनरशिप हुई है, उसी का नतीजा है कि फिलहाल क्या यहाँ इन अंतिम ओवर्स में, अंतिम गेंदों पर कुछ एक विकेट लेकर इस मुकाबले का रोमांच और ज्यादा बढ़ा पाते हैं या नहीं। 83 रन्स क्रॉस द लाइन। एक बार फिर से खेलने की कोशिश, मिक्सअप हुआ है। दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने छोर पर वापस। डॉट बॉल कितना ज्यादा प्रेशर बिल्ड करती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस समय 83 रन बोर्ड पर है। 1 बॉल अभी इस ओवर से आना बाकी, और ये कन्वर्सेशन, ये हॉट कन्वर्सेशन आप लगातार देखेंगे मैदान पर। कप्तान के लिए जरूरी होता हुआ कि किस तरह से वो अपने गेंदबाजों को, और बाकी वो जो इर्द गिर्द खिलाड़ी है ना, वो कहीं ना कहीं एडवाइस जरूर करेंगे कि आप सिंगल्स दे दें। सिंगल्स देंगे तो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर एक सेट बल्लेबाज, क्योंकि अभी तक वो जो रणनीति है वो साफ नजर आती है, और वो डिस्कशन थोड़ा सा समय जरूर। 83 आखिरी 6 रन 7 बॉल। आई इधर पिला दी लड़ू चाय है 83 सर, 83 आखिरी 6 रन 7 बॉल में, और 11वें ओवर से इस आखिरी गेंद का आना बाकी, जिसमें थोड़ा सा समय लेती हुई यहाँ पर LPS।
अपडेट हुआ था, इशू है, नेटवर्क इशू है। अब हो गया ना? अपॉलॉजी करके 6 बजे ओवर यहाँ कंप्लीट हुआ है क्योंकि नेट का सर थोड़ा सा इशू है, मेरे पास डिले आ रहा है। तो आखिरी ओवर, 11 ओवर के बाद 83 3 विकेट और 6 गेंदों में 6 रन। और कप्तान का लाउड एंड क्लियर मैसेज कि कोई भी यहां से गेंद छोड़ेगा नहीं क्योंकि सिंगल्स आप देना चाहते नहीं है। चेक कर रहे हैं 6 में 6 ना।
तरह यहाँ पर अब बल्लेबाजी होती है नॉन स्ट्राइकिंग एंड और स्ट्राइक पर ठीक है, यहाँ सिंगल आप रोकना चाहेंगे या फिर सिंगल्स अगर आप दे देंगे तो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर परेशानी पेश करना चाहेंगे। एक बार फिर से हवा में ये शॉट और पिछले कुछ गेंदें अगर आप देखेंगे ना तो टच हुई है प्रॉपर तरह से और वो भी गैप में गई है और 2 रन यहां पर दौड़ कर लेते हुए और इसी के साथ 11 ओवर फाइनली यहां पूरे होते हुए और 11 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 85, 3 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर्स में केवल 4 रन दूर, केवल 4 रन चाहिए यहां से जीत के लिए। 38 रनों की साझेदारी ने पूरी तरह से इस मुकाबले में जो पकड़ की उम्मीद लेकर चली थी यहां से एलपीएस उसको थोड़ा सा परेशानी में डाला है और अपने अर्धशतक से 3 रन दूर तरुण और जीत के लिए टीम को चाहिए यहां से 4। ज्यादातर खिलाड़ी अब आप देखेंगे यहाँ बाउंड्री लाइन के करीब और क्या यहाँ से क्या फील्ड प्लेसमेंट होना चाहिए क्योंकि 4 रन चाहिए, ग्राउंड बड़ा है, गैप्स आपके पास अवेलेबल है, रनिंग बिटवीन द विकेट मैटर करेगा क्योंकि आप बड़े शॉट्स के लिए जाने वाले हैं नहीं। ढलती हुई शाम, मैदान एक बार फिर से वो उम्मीद आप करें कि अलोंग द ग्राउंड खेलें और गेंद तेजी के साथ निकले, वो मुश्किल है यहां से। केवल आपको स्ट्राइक रोटेट करनी होगी और थोड़ा करीब लेकर चले। 4 रन आखिरी ओवर में दोनों ही टीमों के लिए, दोनों ही कप्तानों के लिए टफ सिचुएशन और असली खिलाड़ी वही जो इस तरह की सिचुएशंस में खुद को काम रखे और गैप फिलहाल देखना रहेगा यहां से किस तरह से मिल पाता है। पहली गेंद, अंतिम ओवर, आखिरी 4 रन, अनुभव, जोश, फुल टॉस, ये गेंद हाथ खोलने का मौका मिला है, डाउन द ग्राउंड, एक अच्छा शॉट, पहला रन तेजी से और ये मिसफील्ड और मिसफील्ड के चलते यहां जो फंबल हुआ है उसके चलते दूसरे रन के लिए वापस आते हुए और इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 87, 1 रन दूर, 2 रन दूर टीम यहां से जीत के लिए, 1 रन दूर यहां अर्धशतक के लिए। एक बेहतरीन पारी, काफी समय तक याद रहेगी ये क्योंकि एक एंड से आपने विकेट गंवाए, दूसरे एंड से आपने रन्स बनाते रहे और एक बार फिर यहां अच्छा शॉट, क्या यहां दूसरे रन के लिए आएंगे? जी हां बिल्कुल, वापस भेजा यहां और मुकाबला फिलहाल यहां टाई होता हो, लेकिन इस बीच खुश होने का एक मौका, अर्धशतक यहां पर पूरा होता हुआ 36 गेंदों में 44, 4 चौके और 138 के स्ट्राइक रेट से स्कोर बराबरी पर, 1 रन दूर यहां से। क्या यहां मिस किया जाएगा? क्या यहां गेंद मिस कराने की तरफ देखेंगे? और सवाल यह है कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर स्टार्ट किस तरह से लेकर चलते हैं यहां पर, अवेयरनेस क्या यहां पर दिखाते हैं गेंदबाज? कैप, अगली गेंद बल्ले से टच हुई और निकल पड़े रन के लिए और इसी के साथ इस मुकाबले को जीतती हुई 7 विकेट से इस मुकाबले को, अंतिम मुकाबले को आखिरकार अपने नाम करने में मिली है सफलता और इस मैच में असली हीरो रहे यहां तरुण, जिन्होंने ना केवल अर्धशतक बनाया बल्कि एक छोर से अपनी टीम को इस मुकाबले में बांधे रखा और आखिरकार इस सिंगल के साथ इस मुकाबले का यानी आज के दिन का अंतिम मुकाबला जीत के साथ समाप्त होता हुआ। दुष्यंत
दीपक दोनों माइक दे देना। अरे दोनों चाहिए ये भी, थोड़ी टेप बढ़ा दी है। हाँ इसकी पूछ रहे। अरे वैसे ही दीपक दोनों को तेरे को पता ही है, लास्ट मैच था मगर डेडिकेशन दोनों बाहर ही हो चुके हैं। इस मैच से पहली बार थी लेकिन उसके बावजूद जो स्पिरिट दिखाई है भाई, दैट इज कमेंडेबल। यही हुआ है, ये बात बोल दी और क्या मजा आ जाएगा। पूछे लगा दे इस पर। राहुल प्रेजेंटेशन करेगा, तू सवाल राहुल उधर हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट। तू लूजिंग कैप्टन के पास खड़े हो प्रेजेंटेशन कर दियो, ये विनिंग ये नहीं तू विनिंग कैप्टन के पास प्रेजेंटेशन करके खड़े हो गए, तो लूजिंग कैप्टन की तरफ खड़े हो जाएगा। स्टार्ट लूजिंग कैप्टन से करेंगे ना, तो दोनों सवाल पूछेगा। हाँ दिलीप भी पूछेगा। दिलीप ठीक है, मैं माइक आगे बढ़ा दूंगा। माइक है इसके पास नहीं, जो मेरे साथ होंगे जैसे देख लेंगे। आप भी आओ ना, मैं हूँ ना, आओ बीच में हमारे मेंटोर। मैच कौन डिसाइड किया है कि 12-12 ओवर के करें, 15 पूरी करें, तो देखते हुए 15 का नहीं कंप्लीट हो पाएगा, ये भी आप अनाउंस कर दें। Provision master strokes. Semi one है Divinians Sunrisers and Euphorians master strokes between VGS and VGS VGS का पूरा क्या नाम है? VGS strikers and VSPK finishers. और ये 12-12 ओवर के होंगे, ये भी अनाउंस कर देना। और फाइनल भी 12 ओवर का होगा, ठीक है। And match will start exactly at 9:30 AM. Toss will be held at 9 AM. ठीक है। Congrats. ये वाला क्लोज था। So once again, thanking both the teams. It was a hard-fought victory in the end. It was Daring Divinians who turned out to be the victorious team, and both of them, Euphorians and Daring Divinians, you've been a fine team. And thank you so much. You're bowing out of this wonderful tournament, and it's Daring Divinians who have the final laugh. But LPS, you've been fabulous, and we hope to see you next season as well. So big congratulations to both the teams, and good luck for the next season. And having stated that, semi-final one, both the teams that will be taking on each other would be the Indian Sunrisers and Euphorians Master Strokes. They'll be playing the first semi-final, and the second one would be between VGS and VSPK. So these are the final 4 teams that make the cut and they advance into the tournament. And one more reminder that the semi-final as well as the final will be 12 overs apiece. That has been decided by the organizing committee, and we'll start 9:30 sharp. So we expect both these teams, the Indian Sunrisers and Euphorians, to be present at the ground by 9 AM, and we'll start by 9:30. So both the skippers are out here with us, and we've got Dilip, who's got the losing skipper, LPS, is with us. So Saksham sir, Satyam, I beg your pardon, Satyam sir is with us. So Dilip has a bag full of questions for you. थैंक यू राहुल। और सर एंडिंग हर कोई चाहता है कि एटलीस्ट एक स्माइल के साथ हो, लेकिन एक लर्निंग प्रोसेस और ये पार्ट है गेम का। तो जो इस सीज़न में गलतियाँ हुई है उसको आप किस तरह से देख रहे हो और नेक्स्ट सीज़न उसको कितना इम्प्रूव करके आएंगे? I think next time we're going to practice more. Fielding we need to improve.
एंड बाकी आई थिंक वी नीड अ बैट्समैन हु कैन डू द हिटिंग. आई थिंक एवरी टीम हैज अ बैट्समैन जो एंड में बाउंड्रीज मार पाता है वैसे, बट इन आवर टीम वो कहीं पर हो नहीं पाता. सो आई थिंक दैट इज द दैट वाज द विनिंग फैक्टर इन देयर टीम व्हिच हेल्प देम टू विन द गेम. और अब तक का ये मेरे हिसाब से बेहतर मैच है, क्योंकि आप दोनों ऑलमोस्ट बाहर हैं इस टूर्नामेंट से, लेकिन क्लोज जो मैचेस हैं टू द प्रीटी गुड गेम, प्रीटी क्लोज. तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि क्रिकेट में कहा जाता है कि आप एज मैटर नहीं करती, आप किस एज में है या किस तरह से खेलें, लेकिन वो जो जिद होती है ना कि नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, तो आज उस तरह वाला जो खेल है. और अच्छा लगा देखकर कि आपने लास्ट गेंद तक, और वो जो लास्ट ओवर में अनाउंस किया था ना कि कोई भी गेंद छोड़ेगा नहीं, तो वो माइंड में रहा. और नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो मे बी आप यू फील बेटर एंड प्ले वेल. I think next time you're going to come with more passion, and I think that's going to help us to win the game. Thank you, sir. Thank you so much. So, Rahul. So thank you so much, sir. LPS, never short of a smile. That's the essence of this team. And having said that, talking about smiles, it's daring Divinians who are all smiles after this game. And as said, the skipper stated last time around when they lost their first game of the day, Manan sir is here, and he said his team will give the best. And they've come out fighting, and they are victorious. विनिंग फाइनली. एंड क्या सीखने को मिला सर इस सीज़न में? कहाँ गलत है? क्योंकि आप पूरा साल प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, प्लान बनाते हो, और उसके बाद जिस तरह से आपने देखा शायद थोड़ा सा वो रहेगा, टीस रहेगी. No, honestly, first of all, the match was really a cutthroat match for me, especially because I have personally participated for the first time. So till the end, my heartbeat was pumping. Now, if you talk about the winning or losing, it hardly matters. Since first season, it hardly matters to me. I'm not here for the trophy. I'm here we're just here for the performance. As you said that we have practiced for the past 1 year. No, it's not correct. We just practiced for the last 20 days, and the credit goes, along with the team, the credit goes to my senior physical education teacher, Mr. Vijay Vashist, and that lady, young lady Kajal, and that's the tall guy who's there, Mr. Jai Kishan, who really made us on our toes. And I think so that the equal credit will go to the outstanding players as well. And again, winning and losing, and as Rahul told that we are out of the tournament, we are not out of the tournament, we are out of the season actually. So we're going to be with the tournament till we have the players. And honestly, the whole team has given their best, and I just tried to give, because I have a very, a very proficient player, Tarun, who on all we were depending before our matches. But this match, yes, everybody took the responsibility, who was able to perform, the bowlers, the batsmen, and I was just there, was trying to be the pillar. I don't know how I succeed, but the credit goes to all of them, and to that coach again, because we just got admitted under him past 20 years. So it is all their efforts, and it's his strategy and Mr. Vijan Kajal. Again, his strength. Thank you so much. फाइनल वर्ड सर, एक मोटिवेशन के लिए कि यस वी कैन डू बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन. एंड क्या चेंजेस रहेंगे उसमें? क्योंकि आप खेले अच्छा हो वो मैटर नहीं करता है, आपने गलतियां की वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपने खुद को ऑब्जर्व कितना किया है कि आप खेल सकते थे, नहीं खेल पाए, ये पार्ट है, लेकिन कितना अच्छा कर सकते हो, और किस प्लेयर्स को आप चाहेंगे कि वो जिनसे उम्मीद थी वो नहीं चले, लेकिन वो चाहते हैं कि आप. It all depends upon the day. मुझे मेरा चलना भी नहीं पता था, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को मेरे पे भी भरोसा नहीं था, बट अब मेरे को ये लोग पंप अप करते हैं. It all depends upon the day, and I think we got to introspect. Everybody knows who their strengths and weaknesses. कितना मुश्किल होता है एक टीचर्स के लिए सर मैनेज करना, क्योंकि वो जो शेड्यूल सर, क्योंकि मेरे लिए 12 साल बाद मैं टीचर्स के बीच में खड़ा हूँ, थोड़ा मैं भी हूँ, हेजिटेट हूँ. आप मेरे चेहरे से देख, हमारा मेन रीजन ये है कि रिटायरमेंट एज के बाद भी ये टीचर्स स्कूल के अंदर एनरोल रहे हैं, तो अगर फिट रहेंगे तो रह पाएंगे. तो हमारा मेन मोटिव ये है कि लोग फिट रहें, आगे जाके टीसीसी को किसी ना किसी तरीके से दुआ जरूर देंगे, क्योंकि इनके जो हम उम्र होंगे वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट विन, एंड दिस इज द बिगेस्ट हिडन ट्रेजर ऑफ टीसीसी. दैट्स द थिंग. थैंक यू सो मच सर. So thank you so much, Dilip. And before the big awards are given away, I'd take a moment and I'd like you to put your hands together
किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए. Thank you so much for the fascinating and wonderful cricket you guys have provided us. And now the big awards. The batsman of the match is none other than Tarun. Tarun sir, you are the best batsman of the match and a match winning effort. Very well played, Tarun sir.